الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 4 اگست ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات: وائس آف ڈیموکریسی کی رپورٹ نے لوک سبھا انتخابات کے نتائج پر سوال کھڑا کیا ہے، جس پر کانگریس نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے. وائس آف ڈیموکریسی کی رپورٹ کا خلاصہ آج کی دوربین میں دیکھیے. کرناٹک حکومت نے وائناڈ متاثرین کے لیے 100 مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے اظہار تشکر کیا. یوم آزادی کے پیش نظر خفیہ محکمہ الرٹ پر ہے. ساتھ ہی VVIP کی سیکورٹی معاملے پر اہم میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکورٹی پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تاج محل کو شیو مندر قرار دے کر گنگا جل چڑھانے کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تاج محل کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے شیو مندر قرار دے کر گنگا جل چڑھانے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے. تفصیلات میں ضرور دیکھیے. اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی میں 2 عمارتوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف دشمن جائیداد معاملے میں کارروائی کی گئی ہے. آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے پورا معاملہ. شیو سینا یعنی UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے BJP پر طاقت کے بیجا استعمال کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے پارٹیوں میں پھوٹ ڈالا کرتی ہے. امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر وہ ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اس مرتبہ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا. لاہور میں ڈاکوؤں نے سائیکل سوار جرمن سیاح کو لوٹ لیا. پولیس کے مطابق اس واردات میں ملوث کم از کم 2 ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے اور یہ سیاح اب محفوظ ہے. پاکستان میں موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے. تازہ صورتحال آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے. خواتین کے 25M پسٹل کے فائنل مقابلے میں ہندوستانی نشانہ باز منو بھاکر نے 4تھا مقام حاصل کیا اور اس طرح وہ اپنے تمغوں کے ہیٹرک لگانے سے ایک قدم پیچھے رہ گئی. آپ ہمیں YouTube پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. کانگریس نے ایک مرتبہ پھر لوک سبھا انتخابات 2024 کے ووٹ فیصد اور نتائج کو لے کر الیکشن کمیشن سے سوال کیا ہے. اپوزیشن پارٹی نے یہ معاملہ وائس آف ڈیموکریسی کی ایک تازہ ترین رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس رپورٹ سے پیدا ہوئے سوالات کے جوابات دے. اس معاملے میں کانگریس کے سینئر رہنما سندیپ دکشتیپ نے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں بتایا کہ وائس آف ڈیموکریسی کے نام سے ادارہ نے حال ہی میں ہوئے لوک سبھا انتخابات نتائج پر ایک تجزیہ کیا ہے. تجزیہ کے مطابق شروعاتی مرحلے میں اعلان کردہ ووٹنگ فیصد کے اعداد و شمار اور آخری مرحلے میں حتمی اعداد و شمار میں فرق ہے. قومی سطح پر بتائے گئے اعداد و شمار اور آخری اعداد و شمار میں اگر 6% کا فرق ہے تو کیا یہ انتخابی نتائج درست تھے؟ سندیپ دکشتیپ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہر مرحلے سے کئی دن بعد ووٹنگ کا حتمی فیصد جاری کیا. EVM سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. EVM سے سبھی چیزیں پتہ چل جاتی ہے، کچھ بھی راز نہیں رہتا. کانگریس نے کہا ہے کہ EVM سے جب ووٹنگ شروع ہوتی ہے تو ہر 2 گھنٹے میں الیکشن کمیشن کو اعداد و شمار بھیجنے ہوتے ہیں ہر بوتھ پر کتنی ووٹنگ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ریاستوں کی سطح پر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حیرت انگیز طریقے سے آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں پہلے جاری کیے گئے نمبر اور حتمی طور پر جاری کیے گئے نمبروں میں 12.5% ووٹوں کا فرق ہو جاتا ہے.
इत्तेफाक यह है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने इंतखाबात में अच्छा किया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ईवीएम के जमाने में आदाद शुमार में ऐसा फर्क पूरे इंतखाबी अमल पर सवाल खड़ा करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लगाते हुए संदीप दक्षदीप ने कहा है कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेट जैसे मसाइल के सबब पूरी जानकारी नहीं दे पाते थे, लेकिन कमीशन ने मजीद एक आदाद शुमार जारी किया जिसका जवाब ही उन पर सवाल खड़ा करता है। मसलन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2019 में भी हम कुछ मराहिल में ताखीर से डाटा दे पा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी 7 बजे जारी करदा डाटा और फाइनल डाटा में 1% से भी कुछ कम का फर्क था। कांग्रेस रहनुमा ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन अगर आईनी इदारे की कारकर्दगी जमहूरियत पर बराह रास्त असरअंदाज हो तो उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का तस्करा करते हुए संदीप दक्षदीप ने कहा है कि अगर इस रिपोर्ट में कई तरीके से तजज़िया किया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कौन कितने फर्क से जीता है और कहां कितना वोट फीसद बढ़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमारा ये कहना है कि वो इस रिपोर्ट पर जवाब दें क्योंकि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट पर इत्मीनान बख्श जवाब नहीं देता है तो ये संगीन सवाल पैदा करेगा। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि कर्नाटक हुकूमत लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर वायनाड में मुतासरीन के लिए 100 मकानात तामीर कराएगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस ऐलान के लिए वज़ीर आला सिद्धरामैया का शुक्रिया अदा किया। सिद्धरामैया की रिपोर्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आपकी वाबस्तगी बहाली की कोशिशों की तरफ एक अहम कदम है। हिंदुस्तानियों की हमदर्दी और यकजहती की इस वक्त जरूरत है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम के लिए वज़ीर आला सिद्धरामैया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मैं वज़ीर आला सिद्धरामैया और कर्नाटक के आवाम का हमदर्दी और इंसानियत के लिए इस इक़दाम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वाज़ेह है कि 30 जुलाई की सुबह वायनाड जिला में जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में तकरीबन 344 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहां तकरीबन 300 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू कारकुनानों को तबाहशुदा घरों और इमारतों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पानी के जमाव और कीचड़ समेत मनफी हालात का सामना है। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने हफ्ते को कहा है कि वायनाड आफत से मुतासिरा इलाके में बचाव ऑपरेशन आखिरी मरहल में है। सबको महफूज मकामात पर ले जा रहे हैं, तवज्जो मरकूज की जा रही है। हुकूमत ने 148 मुतासिरीन की लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी है, जबकि 142 अफराद इस वक्त रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। यौम आजादी यानी 15 अगस्त के पेश नजर सभी रियासतों में सिक्योरिटी को लेकर मीटिंगों का दौरा शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज राजधानी दिल्ली में भी एक इंतहाई अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। इसमें सिक्योरिटी से मुताल्लिक कई उमूर पर आला सतही के अफसरान ने तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में NSG, SPG, IB, फौज और दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरान ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में VVIP यानी इंतहाई अहम शख्सियात की सिक्योरिटी को लेकर तजज़िया किया गया। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले जैसे किसी भी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स की तैयारियों पर बातचीत की गई और हर तरीके से महफूज रहने का अज़्म जाहिर किया गया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मामले में खुफिया महकमा ने इससे जुड़े मुताल्लिका महकमों सिक्योरिटी यूनिट्स तमाम अफवाज से मुकम्मल जानकारियां तलब की है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी इस वक्त बहुत सख्त भी है और उनसे मुलाकात करने वाले सभी लोगों पर मुस्तैदी के साथ नजर रखी जा रही है। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने राजधानी में यौम आजादी पर सिक्योरिटी के मद्देनजर पैरा मोटर हैंग ग्लाइडर, क्वाड कोपर और माइक्रो लाइट तैयारा की प्रवास पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली पुलिस ने यह हुक्मनामा 2 अगस्त को जारी किया और 15 दिनों के लिए इन सभी पर पाबंदियां आयद की गई है, यानी आइंदा 16 अगस्त तक की पाबंदी नाफिजुल अमल रहेगी। पुलिस के मुताबिक हुक्म की तामील नहीं करने पर भारतीय न्याय संहिता यानी 2023 की दफा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ताज महल के ताल्लुक से एक मर्तबा फिर तनाजा खड़ा होने की कोशिश करते हुए उसे शिव मंदिर करार देकर गंगा जल चढ़ाने का वाकया मंजर आम पर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने के इल्जाम में हफ्ते को 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल तामीर करवाया था और ताजमहल को मोहब्बत की अलामत करार दिया जाता है। गिरफ्तार मुलजिमान पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंचे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में उन्हें ताजमहल के इहाते में इस तरह गंगा जल चढ़ाते हुए देखा जा सकता है जिस तरह हिंदू अकीदतमंद इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पुलिस ने कहा है कि इसकी दलील ये थी कि ताजमहल कोई यादगार नहीं बल्कि शिव मंदिर है। मुलजिमान ने गंगा जल को एक स्टिकर पर डाला गया जिस पर ओम लिखा हुआ था। गौरतलब यह है कि मखसूस ग्रुप जहां ताजमहल का नाम तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, वहीं कभी कभी वहां आरती या पूजा करने की भी कोशिशें की जाती है। ऐसी मजहबी रसूमात के हवाले से मकामी सतह पर अदालती केस में भी चल रहा है। सावन के महीने में देवता शिव की खास पूजा की जाती है। हिंदुत्व के नजरिया से वाबस्ता गिरोह अक्सर ताजमहल को तेजो मालिया भी करार देता है। अगर शहर के डीसीपी सूरज राय ने बताया कि दोनों मुलजिमान को ताजगंज पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा गया है। मुलजिमान की शनाख्त उमेश और श्याम के तौर पर हुई है। मामले में दोनों से पूछगछ की जा रही है और ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया। रामपुर इंतजामिया ने हफ्ता को समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में दुश्मन जायदाद करार दी गई जमीन पर बनी 2 इमारतों को सील करने की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक खाली कराने के लिए दी गई वक्त की तकमील के बाद अहलकार पुलिस फोर्स के साथ इहाते में पहुंचे और ये कार्रवाई अंजाम दी। इल्जाम है कि यह इमारत जौहर यूनिवर्सिटी में निगरां की जमीन पर नाजायज कब्जा करके तामीर की गई थी। वाज़ेह है कि हाल ही में हाई कोर्ट के हुक्म पर जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन ऑफ एमनी प्रॉपर्टी यानी दुश्मन जायदाद के निगरान ने पैमाइश कराई थी। महकमा रेवेन्यू ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़े 13.8 एकड़ दुश्मन जायदाद की पैमाइश करके इसे कस्टोडियन के हवाले कर दिया गया था। इसी जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी चीफ की रिहाइशगाह बनाई गई थी जिसे एसडीएम सदर मोनिका सिंह ने 25 जुलाई को खाली कराने का नोटिस दिया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को दिए गए नोटिस में इंतजामिया ने 7 दिन का वक्त दिया था जिसके बाद निगरां हफ्ते को रामपुर पहुंचा और मकामी इंतजामिया की मदद मांगी। रेवेन्यू टीम ने नफरी के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों इमारतों को सील कर दिया और वहां पर जायदाद के कस्टोडियन का नोटिस चस्पा कर दिया। महकमा दुश्मन जायदाद की जानिब से इंतजामिया को जौहर यूनिवर्सिटी में वाक़े अराजी की हद बंदी कराने और उस पर कब्जा करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। उसके बाद महकमा रेवेन्यू की टीम ने 4 दिन तक जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन की पैमाइश की और इस पर कब्जा करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें भी दुश्मन जायदाद की जद में आ गई। एसडीएम सदर मोनिका सिंह ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी में वाक़े दुश्मन जायदाद पर कब्जा करने के अहकामात दिए गए थे। अहकामात के बाद अराजी तो कब्जे में ले ली गई है, 2 इमारतें दायरे में आई, उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया था, उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हफ्ते को उन दोनों इमारतों का कब्जा हासिल करने के बाद उन्हें सील करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। पुणे में शिवसेना यानी यूबीटे के सरबराह उद्धव ठाकरे ने हफ्ते के रोज भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत में शामिल होने के लिए सियासी पार्टियों को तोड़कर ताकते जिहाद में मुलव्विस है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के औरंगजेब फैन क्लब के सरबराह होने के बारे में उनके खिलाफ तबसरा का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने शाह पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो पानीपत की लड़ाई में मराठियों को शिकस्त देने वाले अफगान हुक्मरां अहमद शाह अब्दाली की सियासी औलाद है। बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए ठाकरे ने साबिक इत्तेहादी पर शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में फूट का हवाला देकर पार्टियों को तोड़ने का इल्जाम भी आयद किया। ठाकरे ने पुणे में पार्टियों कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुसलमान हमारे साथ है तो हम उनको अपना हिंदुत्व समझते हैं, तो फिर हमें बीजेपी के मुताबिक औरंगजेब फैन क्लब है, फिर आप जो कर रहे हैं वो ताकत का जिहाद है। उद्धव ठाकरे ने स्कीम और उस पर वोटों को मुफ्त देकर रिश्वत देने का इल्जाम आयद किया। वजह है कि रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो इख्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है।
اور بی جے پی शिवसेना में फूट डालकर इख्तिदार हासिल किया। वहीं दूसरी जानिब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में फूट डाली गई। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को 4 पार्टियों में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी बिरना सिंह ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महकमा दिफा ईरान या ईरानी शराकतदारों और उसकी प्रॉक्सियों की तरफ से इलाकाई कशीदगी के इम्कानात को कम करने के लिए इक़दाम करता रहेगा। वज़ीर दिफा ने इस बात का इआदा किया है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हौलनाक हमले के बाद से अमेरिका खित्ते में अपने अहलकार और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जिसमें इसराइल के दिफा के लिए हमारी आईनी वाबस्तगी भी शामिल है। सिंह ने मजीद कहा है कि वज़ीर दिफा लैंड स्टाइन ने इजाफी तौर पर बैलिस्टिक और दिफाई सलाहियत वाले क्रूज मिसाइलों को यूरोप और मशरिक़ी वस्ता में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अमेरिका का यह बयान तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शकर की चंद रोज कबल हलाकत के बाद सामने आया है और दोनों हलाकतों के बाद ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों ने जवाबी कार्रवाई करने का अज़्म जाहिर किया, जिससे मशरिक़ी वस्ता में मजीद कशीदगी की खदशात पैदा हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल में सलामती के एक आला मुशीर ने जुमा को एक इंटरव्यू देते हुए खबरदार किया कि अगर ईरान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने के लिए हमला किया तो इसराइल पीछे नहीं हटेगा। इस्माइल हानिया को जुमा के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया गया, जहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। ईरान और हमास ने इस्माइल हानिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है, लेकिन इसराइल ने अभी तक न तो कोई उसकी तस्दीक की है और न ही तरदीद की है। दरियासना इसराइली पुलिस ने यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के इमाम को हमास के मकतूल रहनुमा इस्माइल हानिया के लिए दुआ करने पर आर्जी तौर पर हिरासत में ले लिया था। उसके वकील ने बताया कि पुलिस अफसरान 88 साला आलिम इकरमा सबरी को नमाज जुमा के बाद चंद घंटों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इमाम इकरमा सबरी के वकील के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने उनसे पूछगछ के बाद उन्हें उस शर्त पर रिहा किया कि वो 8 अगस्त तक मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होंगे। गजा पट्टी में हमास के ज़ेरे इंतजाम वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अब तक कम से कम 39,550 अफराद हलाक जबकि 91,128 जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जबकि करीब 10,000 फलस्तीनी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक मलबे तले दबे फलस्तीनियों की हकीकी तादाद भी अब तक के अंदाजों से कहीं ज्यादा हो सकती है। 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल में हमास के एक दहशतगर्दाना हमले में करीब 1200 इसराइली शहरियों को हलाकत के बाद इसराइल ने गजा पट्टी में बड़ी फिजाई और जमीनी अस्करी कार्रवाइयों का आगाज किया था। इसराइली फौज के कार्रवाइयों के नतीजे में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों और गजा में शहरी ढांचे की बड़े पैमाने पर तबाही के पेश नजर इसराइल को आलमी सतह पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। लाहौर पुलिस का कहना है कि वो एक जर्मन सयाह को लूटने के वारदात में मुलव्विस 2 डाकुओं की तलाशी जारी रखे हुए हैं। लाहौर पुलिस के तर्जमान आगा एहतशाम ने हफ्ते के रोज DPI को बताया कि हमने वाकई में मुलव्विस 2 डाकुओं को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि साइकिल के जरिए सयाहत करने वाले ये जर्मन सयाह महफूज है और उसका ख्याल रखा जा रहा है। यह मालूम नहीं हो सका कि साइकिल सवार लाहौर से भारत जाने का मंसूबा बना रहा था या उसका कोई और मंसूबा था। ये वाकया जुमा को निस्फ शब के बाद उस वक्त पेश आया जब 27 साला सयाह सड़क के किनारे एक अवामी पार्क में लगाए गए खेमे में सो रहा था। पुलिस ने बताया कि कम से कम 2 डाकू उस सयाह से एक मोबाइल फोन, कैमरा, एयरबड्स और 5,000 पाकिस्तानी रुपये छीन लिए। मकामी मीडिया ने बज़ाहिर परेशान सयाह की तस्वीरें नश्र और शाये की, जैसे लूट मार करके दोनों तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने कहा कि मुल्जिमान की तलाश के लिए मुहिम में कम से कम 2 टीमें हिस्सा ले रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मुल्जिमान को पकड़ लिया जाएगा। एक मकामी मीडिया ग्रुप डॉन न्यूज की वेबसाइट पर शाये किए गए आदाद शुमार के मुताबिक आबादी के लिहाज से मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में हालिया महीनों में जराइम में इजाफा देखने में आया है, जहां रोजाना तकरीबन 200 अफराद लूटे जाते हैं। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों की वजह से आने वाले सैलाबियों की वजह से इस हफ्ते कम से कम 30 अफराद
हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक जुमा को पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बारिशों ने 4 दहाइयों से जायद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनूबी एशिया के खित्ते में गुज़िश्ता हफ्ते मानसून के मौसम की आमद की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में सैलाबियों और लैंड स्लाइडिंग्स ने हादसात को जन्म दिया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से कम से कम 195 अफराद हलाक और तकरीबन 200 लापता है। शदीद बारिशों ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को भी अपने लपेट में ले रखा है, जिससे सैलाब, इमारतें गिरने और आसमानी बिजली गिरने के खतरात बढ़ गए हैं। सुबह पंजाब में हुक्काम का कहना है कि लाहौर में बारिश का 44 साल पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गया। सुबह में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से 6 हलाकतों की भी इत्तला है, जबकि सूबाई हुक्काम ने इस हफ्ते जुनूबी पंजाब में सैलाब से भी खबरदार किया है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के तर्जमान अनवर शहजाद ने रॉयटर्स को बताया कि बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वाले 2 दर्जन अफराद में 12 बच्चे शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे पाकिस्तान को मौसमों की शिद्दत और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे ज्यादा खतरात के शिकार ममालिक में से एक के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान में 2022 में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी थी और उस वक्त 1700 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए थे। हिंदुस्तान की खातून शूटर मनो भाकर के लिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आज का दिन इंतहाई अहम था, लेकिन वो तारीख रकम करने से एक कदम पीछे रह गई। पेरिस ओलंपिक्स में अब तो 2 तमगे हासिल कर चुकी मनो भाकर के पास तमगों के हैट्रिक लगाने का मौका था, लेकिन वो 25 मीटर पिस्टल के फाइनल मुकाबले में चौथा मकाम ही हासिल कर पाई, यानी एक मकाम पीछे रह गई, वरना वो ब्रांज मेडल हासिल कर सकती थी। खवातीन के 25 एम पिस्टल मुकाबले में मजमूई तौर पर 10 सीरीज के शॉट लगाए जाने थे। एक सीरीज में मजमूई तौर पर 5 शॉट थे। 3 सीरीज के बाद एलिमिनेशन का दौर शुरू हो गया था, यानी धीरे धीरे करके खिलाड़ी बाहर होने लगे। मनो 8 सीरीज के बाद 28 स्कोर के साथ चौथे मकाम पर रही, यानी 40 में से उनके 28 शॉट ग्रीन हुए, बाकी निशाने पर नहीं लगे। 8 सीरीज में मनो भाकर और हेनरी वेरोनिका मेजर के दरमियान टक्कर था। इस सीरीज में मनो के 3 शॉट निशाने पर नहीं लगे, जबकि वेरोनिका के 2 शॉट नहीं लगे। इस तरह वेरोनिका ने बाजी मार ली और तीसरे मकाम पर रहते हुए उन्हें ब्रांज मेडल हाथ लग गया। इस फाइनल मुकाबले में जनूबी कोरिया के जिंग यांग ने तलाई तमगा और फ्रांस की कैमरी ने चांदी का तमगा जीता। 10 सीरीज के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों का स्कोर 37-37 था। नतीजेकार दोनों खिलाड़ियों के दरमियान शूट आउट हुआ। इस शूट आउट में जिंग यांग ने 4 शॉट निशाने पर लगे, जबकि कैमली का सिर्फ 1 शॉट निशाने पर लगा। इस तरह यांग बाजी मार ले गई। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में शारिक रहमानी, शहाब, जावेद, शाकिर आलम, अमीर हसन, मोहम्मद असदुल्ला, मालिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी, मोहम्मद शाहिद रहमानी और मोहम्मद सादिक साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।